So today we are going to do the sixth story, that is Poets and Pancakes by Ashoka Mitran. See, Ashoka Mitran, of course, is a very famous story writer. Here, this story has been taken from his book titled as My Years with Boss. Now, here in this story, what we come to know is about Gemini Studio. Gemini Studio of Madras, which is now known as Chennai, and its founder, S.S. Vasan, lent substance and quality to a fragile and unpredictable movie business. Actually, the time that this story talks about, or this story belongs to, is the infancy of independence, because our country got independent very recently at this time, and that is why we were not equipped with so many resources. At that time, our country was really in a miserable state. But at that time, SS Vasan, he somehow tried his hand in the business of movies. So Poet and Pancakes, this is an excerpt, a part which has been taken from his book My Years with Boss, brings to life the leading members, their talents and roles, their frustrations and ambitions. So this story revolves around the casteism, especially of early 20th century India. It gives a panoramic view of the impact and affiliations of those parts of Gemini Studios with regard to independent India in its infancy, communism, and anti-communism. So let's begin reading the story. So let's know about the author first, Ashoka Mitran. Ashoka Mitran, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organizations of India in the early days of Indian filmmaking. Its founder was S.S. Vasan. The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Many of these had to be written out by hand. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family. The following is an excerpt from his book, My Years with Boss. So, as we come to know, the author of this story actually used to work at Gemini Studio. Though his job there was very insignificant, it was very small, not much of significance, but still he knew about everything. And from this, we come to know that he was a keen observer. Through the story, you will come to know that he used to observe each and everybody in a very keen manner, and that is why he has been able to write a book on it, on his experiences there at Gemini Studio. All right, so let's begin with the story now. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truckloads. So first of all, Poets and Pancakes. So pancake actually refer to the pancake is the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought. Of course, when it was a film company, so makeup has to be done for all actors and actresses, and for that makeup material was brought, and this the one of the brand names of makeup material was Pancake. Greta Garbo, who is a Swedish actress, must have used it. Miss Goha must have used it. Vajanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. Now you see, uh, we come to know about famous actresses. Greta Garbo, who is a Swedish actress in 1954, she received an Oscar. Then an Indian actress, of course, Vajanti Mala has been talked about. So even she was a very famous actress. So these actresses must have used it, this brand. But Rati Agnihotri might not have used it. Why? Because Rati Agnihotri was not such a famous actress as these actresses were. The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables.
Now we are told about the location of this Gemini studio. जो इस Gemini studio का मेकअप डिपार्टमेंट था वो बिल्डिंग में ऊपर की तरफ था, जिसको कि कहा जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था. स्टेबल, यू अंडरस्टैंड, वेयर हॉर्सेस आर kept. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. उस शहर में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको माना जाता था कि वो उसके घर थे. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. So Robert Clive, who was a Britisher, he has lived in this city, all right, and he has done many things over there. He had many apartments, many buildings which were known as his residence. In his brief life, and in out of that brief life, for whatever period he stayed in Madras, he seemed to have done a lot of moving. वो बहुत इधर उधर घूमा, बहुत impossible battles उसने fight भी किए, और यहीं पर इसी सिटी में मद्रास में उसने शादी की एक लड़की से सेंट मैरीज चर्च में in Fort St. George. All right. Now we again come back to the makeup room. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. जो ये मेकअप रूम था ये एक सलोन की तरह था, है ना, जहां बहुत सारे हाफ अ डजन लगभग 6 बड़े बड़े मिरर्स थे, बड़े बड़े शीशे थे, और हर एंगल पे वहां पर लाइट्स लगी हुई थी. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. They were all incandescent, means very bright lights, बहुत चमकने वाली. And you know, when the light is very bright, and especially these yellow lights, they somehow they pour a kind of warmth also. All right, so you can understand in those bright and warm lights how difficult it would have been for these people who are subjected to makeup. जिनका वहां पर मेकअप होता था उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती थी. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बंगाली लीड करता था. ऑलराइट, उसका जो हेड था वो एक बंगाली था, और हु वाज टू बिग फॉर अ स्टूडियो, जो कि लेकिन वो स्टूडियो में काम करने के लिए बहुत बड़ा आदमी था. मतलब दिस स्टूडियो वाज अ स्मॉल प्लेस फॉर हिम. He did not deserve to work in a studio, and that is why he left from there. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. उनके बाद वहां पर एक महाराष्ट्रियन आया जिसकी मदद के लिए एक धारवाड़ कनाडियन पर्सन, हाँ, धारवाड़ कनाडियन, हाँ, वो था. एक आंध्रा का था, एक मद्रासी जो कि इंडियन क्रिश्चियन था, और एक एंग्लो बर्मी, और साथ में कुछ लोकल तमिलियन पीपल वर देयर हु यूज्ड टू असिस्ट दिस महाराष्ट्रियन मेकअप आर्टिस्ट हु वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट, जो इस पूरे मेकअप डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था. ऑलराइट, तो उसके ये सब असिस्टेंट्स थे. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. इससे पता चलता है कि इससे पहले AIR या दूरदर्शन ने, AIR इज ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन ने जब नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने शुरू किए, उससे काफी पहले से ये जो जेमिनी स्टूडियो था, इसका खासकर जो मेकअप डिपार्टमेंट था, दैट वाज a perfect example of national integration. Why? Because people from different spheres of life, belonging to different religions, belonging to different castes, could be seen working together. Belonging to different states could be seen working together. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions. Now you see, it's a kind of satire that he puts over here over makeup. He says कि ये जो गैंग था पूरा नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का, ये एक बहुत ही डिसेंट लुकिंग पर्सन को, एक अच्छा दिखने वाले इंसान को चेंज कर सकते थे
into a hideous means hateful. Crimson is a color, dark purple red color is called crimson color, huh? Dark purple red color, a colored monster, hued is colored monster. विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, और किससे वो उसको एक मॉन्स्टर की तरह में चेंज कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। ये जो इतना पैनकेक विच इज द ब्रांड ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स, उसका यूज करके और बहुत सारे लोकली मेड पोशंस लोशंस लगा के ये एक बहुत ही सिंपल अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को एक मॉन्स्टर में चेंज कर सकते थे। Those were the days of mainly indoor shootings. उस टाइम जो है मोस्टली इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, नॉट लाइक टुडे these days, you know, nowadays what happens that they go to different locations, not only in India, even outside India, to foreign lands, to any part of the world they can go for shooting. But at that time it never used to be like that. Most of the shooting used to take place indoor only. Indoor means in that studio only. And only 5% of the film was shot outdoors. पूरी कोई एक फिल्म का सिर्फ 5% पार्ट होगा जो कि आउटडोर यानी कि स्टूडियो के बाहर शूट किया जाता था, अदरवाइज बाकी 95% जो है वो हमेशा स्टूडियो के अंदर ही शूट किया जाता था. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. And you see, this is the observation of the author. Author कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो लाइट्स लगाई जाती थी ना, कि जो सेट्स पर और स्टूडियो में जो लाइट्स थी वो इन बॉयज एंड गर्ल्स को और बदसूरत बनाने के लिए जरूरी होती थी. क्यों? ताकि उनको सिनेमा के लिए, मूवी के लिए प्रेजेंटेबल बनाया जा सके. Alright, so this was the demand of the movie. Okay, that is why all these lights and all that makeup was required. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को मेंटेन किया जाता था. हायरार्की, यू अंडरस्टैंड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पोजीशंस, जो आपकी means the people who are on the higher position they would be given more respect, and those who are on the lower position they would be given less respect. Alright, तो एक हायरार्की को मेंटेन किया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian, and so forth. Alright, तो किस तरह की हायरार्की थी? जो चीफ मेकअप मैन है, जो मेन है, वो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस को का मेकअप करेगा. जो उसका असिस्टेंट है वो सेकंड हीरो हीरोइन का करेगा. जो जूनियर असिस्टेंट है वो मेन कॉमेडियंस का करेगा. और इस तरह से जैसे जैसे पोजीशन डाउन होती जाएगी वैसे वैसे ही जो लेस सिग्निफिकेंट एक्टर्स हैं उनका मेकअप वो लोग करते थे. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. और वो एक्टर्स, प्लेयर्स एक्चुअली हियर मींस एक्टर्स ओनली, जो कि क्राउड का रोल करते थे, भीड़ को दिखाने के लिए जिन प्लेयर्स को यूज किया जाता था, उनके मेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की होती थी. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. Gemini studio के makeup department में भी office boy हुआ करता था. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. So, you know, it's a kind of mockery और humor has been introduced here. कि जिस दिन crowd की shooting होती थी तो आप देख सकते थे कि वो बड़े से बर्तन में पेंट को जो है मिक्स करता था और फिर उनको crowd players के फेस पर स्लैप करता था. हाँ, स्लैप, यू अंडरस्टैंड, जैसे चाटा मारते हैं तो इस तरह से वो उनके फेस पर लगाता था. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. Now, what was the need to apply too much of makeup? क्यों इतना मेकअप थोपा जाता था उनके इतना उसका रीजन था कि जब शूटिंग हो तो उसमें जो उनके फेस पे जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं ना, पोर्स जो होते हैं हमारी स्किन में, वो ना दिखाई दे. He wasn't exactly a boy. ये ऑफिस बॉय जो है वाकई में एक बॉय नहीं होता था. He was in his early 40s. वो लगभग 40 साल की उम्र का होता था. Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screen writer, director or lyrics writer. और ये बॉय बहुत साल पहले कभी इस स्टूडियो में आया रहा होगा और किस लिए कि वो खुद एक एक्टर बनना चाहता था या टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनना चाहता था.
but he could not be successful, and that is why he started working as a boy in the makeup department of the studio. He was a bit of a poet, लेकिन हाँ वो एक थोड़ा सा कवि तो था. Alright. In those days, I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. मुझे नहीं पता था कि उस टाइम उनको French windows कहा जाता था. तो ये एक cubicle होता था. Cubicle, you understand, एक छोटा सा कमरा. Cubicle जो ये compartments बनाए जाते हैं ना, offices में भी आपने देखे होंगे, they are cubicles, cabins जो होते हैं छोटे छोटे. तो उस समय पर उनको French windows कहा जाता था. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. मैं पूरे दिन अपने डेस्क पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर काटता रहता था, पूरे पूरे दिन उनकी क्लिपिंग्स काटता रहता था, तो लोग सोचते थे कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ. इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. और ऐसा भी हो सकता है शायद मेरा बॉस भी ऐसे ही सोचता हो. सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो इसलिए कोई भी इंसान जिसको लगता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, he would barge into my cubicle. वो अचानक से मेरे कमरे में एकदम से आ जाएगा. Barge into means coming without permission in an aggressive manner, है ना, एकदम से आ जाएगा और मुझे लेक्चर देने लग जाएगा लंबा सा. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Perverts, you understand, those who practice sexual perversion. All right. So he somehow, even जो boy था, उसने भी ये decide कर लिया था कि मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से जो एक बहुत ही लिटरेरी टैलेंट है, ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है, वो यहाँ पर वेस्ट किया जाता है इस डिपार्टमेंट में. वो डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ बार्बर्स के लिए और इस तरह के लोगों के लिए ही होना चाहिए. Soon means even the boy would come. What does he want to say? That even the boy would come to his cabin and start telling him about whatever he wanted to. All right. Nothing short of it could save me from these epics. और कुछ भी मुझे इन एपिक्स से, इन महाकाव्यों से बचा नहीं सकता था. कोई भी छोटी सी चीज मुझे इससे बचा नहीं सकती थी. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kotha Mangalam Subbu. अब इस सभी फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रस्ट्रेशन इज. हताश होना जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रेस. यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन. आप देखोगे कि जितना भी फ्रस्ट्रेशन, कितने कोई भी फ्रस्ट्रेशन का इंस्टेंस हो, उसमें सारा फ्रस्ट्रेशन जो है, सारा गुस्सा जो है, वो एक आदमी पे उतारा जाता था ओपनली एंड कॉवर्टली. कॉवर्टली मीन्स सीक्रेटली. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये आदमी किसका था? मेकअप डिपार्टमेंट का था. वॉज कन्विंस्ड, और वो इस बात से बिल्कुल कन्विंस हो चुका था, वो ये समझ चुका था दैट ऑल हिज वोज, उसके जितने भी दुख हैं, ग्रीफ, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मीन्स ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, जितनी भी इंसल्ट है, एंड नेग्लेक्ट, और जितना भी नेग्लेक्ट है, वो ड्यू टू कोठा मंगलम सुब्बू. ये कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से है. Now Subbu was the number 2 at Gemini Studio. कोई भी फ्रस्ट्रेटिंग इंस्टेंस हुआ, उसका सारा गुस्सा मेकअप डिपार्टमेंट के हेड पे उतार दिया. हेड समझता था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सुब्बू की वजह से हो रहा है. और सुब्बू एक्चुअली वाज हिज असिस्टेंट. ही वाज द नंबर 2. He couldn't have had a more encouraging opening in films than a grown-up makeup boy had. उसकी ये जो सुब्बू था, उसका जो फिल्मों में उसका जो प्रवेश था, वो जो उसकी एंट्री थी, वो बड़ी उम्र के मेकअप बॉय से ज्यादा एनकरेजिंग नहीं हो सकती थी. ऑलराइट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसका उल्टा, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स. उसको तो और ज्यादा अनसर्टेन और डिफिकल्ट टाइम्स फेस करने पड़े होंगे फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपने करियर की शुरुआत की, देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. क्योंकि तब कोई भी प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या स्टूडियो नहीं थे. Even in the matter of education,
especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. यहां तक कि एजुकेशन के मामले में भी उसकी जो एजुकेशन थी, फॉर्मल एजुकेशन, हमारे बॉय से ज्यादा नहीं थी, कोई उसकी अप्रिशिएबल लीड नहीं थी. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, लेकिन सिर्फ इस एक अच्छाई के कारण कि वो ब्राह्मण पैदा हुआ था, अ वर्च्यू, वाकई में ये बहुत बड़ी अच्छाई थी, एक गुण था उसका. He must have had exposure to more affluent situations. Affluent, you understand? Affluent means rich and people. लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ था, उसके पास रिच लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे और रिच सिचुएशंस में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाया. He had the ability to look cheerful at all times, even after having a hand in a flop film. और फिर उसमें एक और गुण भी था कि वो हमेशा खुश रहता था, खुश दिखता था. हाँ, वो हमेशा खुश दिखता था, भले ही उसका हाथ किसी फ्लॉप फिल्म में क्यों ना चला गया हो. He always had work for somebody. उसके पास हमेशा किसी ना किसी के लिए काम होता था. He could never do things on his own. अपने आप वो कभी कुछ नहीं कर सकता था. But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. लेकिन भले ही वो खुद कुछ ना कर सकता हो, भले ही उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी बॉय से ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण था, he got more exposure with rich people and with situations, and that is why he was on this position. And another ability was that he was always cheerful, and he always used to give work to others because he himself could not manage with the work himself. वो हमेशा कभी खुद से काम नहीं कर सकता था, है ना. और लेकिन फिर भी जो उसकी लॉयल्टी थी, जो उसकी निष्ठा भाव था, उसने उसके प्रिंसिपल के साथ उसको पूरा मतलब कंप्लीटली उसको मर्ज कर दिया था. ही कुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल. ऑलराइट. और इसलिए जो उसकी पूरी क्रिएटिविटी थी वो प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए जाती थी. प्रिंसिपल मींस द मेन पर्सन, राइट. ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो जैसे फिल्म्स के लिए ही बना है. Here was a man who could be inspired when commanded. जब उसको कमांड किया जाता था, वो उसको एक इंस्पिरेशन मिलती थी उससे. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. And Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. Up now, you see, we are given an example. प्रोड्यूसर कहेगा कि मुझे नहीं पता कि हम ये सीन कैसे शूट करेंगे कि एक रैट जो है वो पानी के अंदर एक टाइग्रेस से लड़ता है और टाइग्रेस को मार देता है, लेकिन फिर उसको उसके कब्स पे, उसके बच्चों पे दया आती है. एंड ही टेंड्स देम लविंगली, और उनको वो बहुत ही प्यार से अटेंड करता है मतलब. अब मुझे नहीं पता ये सीन कैसे होगा, प्रोड्यूसर ये कहेगा, और सुब्बू 4 तरीके लेकर आएगा कि किस तरह से वो रैट जो है उस विक्टिम के ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों पे प्यार दिखा सकता है. गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से. एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स. और एक बार प्रोड्यूसर कहेगा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव होगा, तो सुब्बू इतना क्रिएटिव था कि वो और 14 तरीके लेकर आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ जाएगा. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years. Filmmaking बहुत आसान थी अगर सुब्बू जैसा इंसान आपके पास हो और स्टूडियो में हो, और एक इंसान जो हमेशा डायरेक्शन देगा और डेफिनेशन देता था जेमिनी स्टूडियो को उसके गोल्डन ईयर्स में, वो इट वाज सुब्बू, वो सुब्बू था. Subbu had a separate identity as a poet. उसकी एक अपनी identity थी, and that was as a poet. And though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. हालांकि उसको एक और कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म दी जा सकती थी, लेकिन उसने फिर भी जानबूझकर डेलिबरेटली अपनी इच्छा से उसने अपनी पोएट्री को मासेस तक एड्रेस किया. His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. लेकिन फिल्म्स में जो उसकी सक्सेस थी, उसने उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स मतलब पोएट्री में
जो उसकी अचीवमेंट्स थी उनको छोटा कर दिया था। ड्वार्फ मींस छोटा करना, ड्वार्फ बोने को बोलते हैं ना, तो बोना कर दिया था, छोटा कर दिया था और ओवरशैडो कर दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या ये कह लीजिए कि क्रिटिक्स को ऐसा लगता था। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanabal, with dozens of very deftly etched characters. उसने बहुत सारी स्टोरी पोम्स लिखी थी अपने फोक रेफरेन में, और एक थिलाना मोहना बल करके उसने एक नॉवल भी लिखा था, जिसमें कि उसने बहुत ही डेफ्टली, डेफ्टली मींस स्किलफुली एज्ड आर रिटन, ड्रॉन, क्रिएटेड कैरेक्टर्स के साथ ये नॉवल लिखा था। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devadasis of the earlier 20th century. यहां तक कि उसने देवदासिस को भी एक बहुत अलग तरीके से उसने क्रिएट किया था, राइट, जो अर्ली 20th सेंचुरी का था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, लेकिन कभी भी वो लीड रोल्स के लिए एस्पायर नहीं करता था, बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। लेकिन कोई भी छोटा मोटा रोल भी अगर उसने किसी फिल्म में प्ले किया, तो उसने मेन कैरेक्टर से, मेन एक्टर से भी अच्छा प्ले किया। He had a genuine love for anyone he came across. कोई भी उसके पास आता था तो उसके लिए वो उसको बहुत ही genuinely प्यार करता था। And his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. और उसका घर एक परमानेंट रेजिडेंस था बहुत सारे लोगों के लिए जो उसके दूर के रिश्तेदार हों या जान पहचान वाले हों। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. ऐसा लगता था कि ये सुबु की नेचर के खिलाफ है कि वो कॉन्शियस भी हो जाए, एक बार कभी इस बात को जरा सी भी तवज्जो दे दे कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिलाता है और सपोर्ट करता है। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. इतना चैरिटेबल इंसान था, इतना improvident, improvident means selfless, not thinking about his future, not thinking about himself at all. So such a selfless person, and yet he had enemies. फिर भी उसके दुश्मन थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? क्या ये इसलिए था क्योंकि वो हमेशा बॉस से बहुत क्लोज लगता था? Or was it his general demeanor that resembled a sycophant? और या फिर इसलिए कि जो उसका जनरल डिमीनियर मींस बिहेवियर था, वो एक साइकोफैंट यानी कि फ्लैटरर की तरह लगता था, चापलूस जिसको बोलते हैं। साइकोफैंट मींस फ्लैटरर। Or his readiness to say nice things about everything, या फिर उसके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा हर चीज के लिए अच्छी बातें कहने के लिए तैयार रहता था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान था इस मेकअप डिपार्टमेंट में जो कि इस सुबु के लिए डायरेस्ट मींस मोस्ट सिवियर, बुरी से बुरी चीजें करने के लिए, मतलब विश करता था हमेशा कि इसके साथ बुरे से बुरा हो जाए। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance rules. He was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आप सुबु को हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उसको एक स्टोरी डिपार्टमेंट में रखा गया था, जिसमें कि एक लॉयर था और राइटर्स थे और पोएट्स भी थे। ऑलराइट, the lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. जो लॉयर था उसको लीगल एडवाइजर करके जाना जाता था, लेकिन हर इंसान उसका जिक्र इससे उल्टा करता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over the sets. एक बहुत ही extremely talented actress थी, लेकिन वो बहुत टेम्परामेंटल भी थी, गुस्से वाली भी थी। एक बार वो सेट पर भड़क पड़ी। While everyone stood stunned, जब सब कोई बिल्कुल स्टन खड़े हुए थे, डर के खड़े हुए थे, the lawyer quietly switched on the recording equipment. लॉयर ने चुपचाप से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट स्विच ऑन कर दिया। When the actress paused for breath, जब वो एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी, the lawyer said to her, 1 minute please, and played back the recording. उसने कहा 1 मिनट रुकिए, और वापस उसने रिकॉर्डिंग चला दी। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade
against the producer. और कुछ भी incriminating means indicating, and unmentionably means not worth being said. uh, tirade means outpouring, भड़ास जिसको बोलते हैं ना, against the producer. हालांकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो उसने प्रोड्यूसर के खिलाफ बोला हो, है ना, बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपनी आवाज फिर से सुनी थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्ट्रक डम, वो एकदम चुप हो गई. A girl from the countryside, एक गांव की लड़की, she hadn't gone through all the stages of worldly experience, जिसने कि इस दुनिया के सारे experiences अभी लिए ही नहीं है, that generally precede a position of importance, जो कि वाकई में precede means come before, a position of importance, जो कि एक position of importance से पहले आई है. She was yeah, and importance and sophistication that she had found herself catapulted into. That catapulted means raised into. वो इतने sophistication से आई थी कि उसने अपने आप को एकदम से वो उसको रेज कर दिया था, चढ़ा दिया गया था. She never quite recovered from the terror she felt that day. लेकिन उस दिन जो उसको डर महसूस हुआ, क्योंकि वो गांव से आई थी, दुनियादारी पता नहीं थी, और जब उसको इतना चढ़ा दिया गया तो उसका टेम्परामेंट जो है इस तरह का बन गया था दैट शी कुड बी एंग्री एनी टाइम. बट व्हेन शी वाज when she was shown that recording, when she heard herself, the way she was speaking, she really felt terrified on that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. लेकिन ये उसके उस ब्रीफ और ब्रिलियंट करियर का एंड था, क्योंकि ये जो लीगल एडवाइजर, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी था, उसने बहुत ही अनविटिंगली मींस इनडेलिबरेटली, अनजाने में उसने उसके करियर का एंड कर दिया था. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsy tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. जबकि जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे वो यूनिफॉर्म पहनते थे, और वो क्या था, खादी की धोती और एक बड़ा ढीला ढाला सा खादी का कुर्ता. जबकि ये जो लीगल एडवाइजर था ये हमेशा पैंट और टाई पहनता था और कभी कभी कोट भी पहनता था. Often he looked alone and helpless. अक्सर उसको अकेला और हेल्पलेस देखा जा सकता था. A man of cold logic in crowd of dreamers. Why was he helpless? Because he was the only man who was led by logics, reasons. In the crowd of dreamers, वो जो सपने देखने वाले लोग थे, because they all were creative people, and he was the only man who was practical, who gave way to logics and reasons and rationality. All right, a neutral man in an assembly of Gandhids and Khadids. गांधियों उन गांधीवादी और खादीवादी लोगों में वो एक अकेला न्यूट्रल इंसान था. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. क्योंकि वो भी बॉस के क्लोज था, तो इसलिए उसको अलाउ किया गया कि वो कोई फिल्म को प्रोड्यूस कर सकता था. हालांकि बहुत रॉ स्टॉक लगा, पैनकेक यूज किया गया, लेकिन फिल्म से ज्यादा कुछ आया नहीं. देन वन डे द बॉस closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और फिर एक दिन बॉस ने ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसको बंद कर दिया, और शायद ये पूरी हिस्ट्री में पहला ऐसा इंस्टेंस होगा जब एक लॉयर की जॉब छूटी सिर्फ इसलिए क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए बोल दिया था. जो was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shetty, and Harindranath Chattopadhyay. So all these people actually, the poets, right? और जेमिनी स्टूडियो उनका फेवरेट हॉन्ट था. फेवरेट हॉन्ट मीन्स अ प्लेस वेर यू फ्रीक्वेंटली विजिट, अ फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस. मतलब जेमिनी स्टूडियो पे वो अक्सर बहुत आया करते थे, एंड दे वर ऑल फेमस पोएट्स ऑफ द टाइम. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day. वहाँ का मेस बहुत अच्छा था जो पूरे दिन बहुत अच्छी कॉफी सप्लाई करता था, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, ना कि सिर्फ दिन में बल्कि
रात को भी ये कॉफी देता रहता था. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये वो टाइम था जब कांग्रेस रूल जो था वो प्रोहिबिशन meant prohibition. Prohibition means prohibition of having alcohol, नशाबंदी जिसको बोलते हैं, है ना. तो कांग्रेस ने उस समय नशाबंदी चलाई हुई थी, तो इसलिए लोग एक साथ बैठकर शराब तो पी नहीं सकते थे. एंड मीटिंग ओवर अ कॉफी वॉज अ सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, तो इसलिए साथ बैठकर कॉफी पीना अपने आप में एक सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. सिर्फ कुछ ऑफिस बॉयज और दो क्लर्क्स को छोड़कर हर चेहरे पर एक लेजर होता था. रेडिएटेड लेजर, चमकता हुआ. रेडिएटेड मीन्स दिखना. शोड लेजर. लेजर, यू अंडरस्टैंड, फ्री टाइम, फुर्सत जिसको बोलते हैं. उनके चेहरे पर फुर्सत दिखाई देती थी. A prerequisite for the poetry, which is the prerequisite means first requirement for the poetry. जो कि कविता के लिए first requirement है कि आपके पास फुर्सत के पल होने चाहिए, तभी आप किसी विषय पर सोच सकते हो, and you can write a poetry on it. So there at the Gemini studio, most of these poets were seen having that leisure on their faces and enjoying coffee, because that was the first requirement for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से बहुत से लोग खादी पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इसके अलावा वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल थॉट के लिए उनके पास बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं था. मतलब दे नेवर अप्रिशिएटेड एनी पॉलिटिकल थॉट. उन्हें बिल्कुल पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. वाकई में जो दे वर ऑल एवर्स. एवर्स मींस अगेंस्ट. अगेंस्ट द टर्म कम्युनिज्म. वो सब जो हैं कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे. ऑलराइट. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन. जो कम्युनिस्ट इंसान होता था उसको एक गॉडलेस मैन समझा जाता था. मतलब कि ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता. ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव. उसमें कोई भी फिलियल मींस पेरेंटल और कंजुगल. कंजुगल मींस कंसर्निंग द स्पाउस लव नहीं होता था. मतलब ना तो वो अपने माता पिता को प्यार करता था, ना ही वो अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को प्यार करता था. उनमें कोई फिलियल या कंजुगल लव नहीं होता था. ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन. कंपंक्शन मींस पेनिटेंस, रिग्रेट, रिपेंटेंस. उसमें कोई ग्लानि, कोई शर्म, कोई रिग्रेट नहीं होता था अपने ही पेरेंट्स या अपने बच्चों को मार देने का. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. और ये जो कम्युनिस्ट लोग होते थे ये हमेशा बड़े मासूम और जो इग्नोरेंट पीपल होते थे, अज्ञानी लोग होते थे, उनमें हमेशा बेचैनी और हिंसा फैलाते रहते थे. ऑलराइट. अनरेस्ट इज बेचैनी, हाँ, डिस्टर्बेंस एंड वायलेंस among such people. Such notions were prevailed everywhere else in South India at that time also. और इस तरह का जो नोशन था, इस तरह के जो ये विचार थे, ये उस समय पर साउथ इंडिया में सब जगह थे. एवरीवेयर एल्स in South India at that time naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gandhi studios. And naturally floated about, और ऐसे विचार जो हैं वो तैर रहे थे among the khadi clad, khadi dressed, खादी पहनने वाले इन पोएट्स में जेमिनी स्टूडियो के. एविडेंस ऑफ इट was soon forthcoming. और इसका जो एक एविडेंस था वो जल्दी ही सामने आ रहा था. When Frank Buckman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952. जब फ्रैंक बुचमैन मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, तो जब फ्रेंच बुशमेंट की जो ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई सम 200 स्ट्रॉन्ग, जिसमें लगभग 200 लोगों के साथ वो मद्रास आई sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. तब उनको जेमिनी स्टूडियोज से अच्छा
वार्मर मींस मोर वेलकमिंग जगह कहीं भी नहीं मिली इंडिया में। ऑलराइट, समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। कोई कोई था जिसने उस ग्रुप को एक इंटरनेशनल सर्कस बताया। They weren't very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. लेकिन किसी ने कहा कि ये इंटरनेशनल सर्कस है, हालांकि वो ट्रेपीज इज अ गेम इन सर्कस, जो सर्कस में जो वो गेम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीज, वो उसमें बहुत मास्टर नहीं थे, उसमें बहुत माहिर नहीं थे। और जहां तक उनका इंट्रोडक्शन विद द एनिमल्स है, दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू डाइनिंग टेबल। व्हाई? बिकॉज दे यूज्ड टू ईट एनिमल्स, दे वर नॉन वेजिटेरियन। वो नॉन वेजिटेरियन थे, तो इसलिए सिर्फ डाइनिंग टेबल पर उनका एसोसिएशन था एनिमल्स के साथ। लेकिन उन्होंने दो प्लेज जो हैं यहाँ जेमिनी स्टूडियोज में प्रेजेंट किए थे इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras. ये जो दो उनके प्ले थे, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, उसके बहुत सारे शोज मद्रास में हुए। एंड along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. और उस शहर के जो बाकी लोग थे, बाकी जो वहां के रहने वाले थे, उनके अलावा जेमिनी स्टूडियो के खुद जो लोग थे, जेमिनी फैमिली जो थी, उसने ये प्ले कम से बार बार देखा। ऑलराइट, Gemini family of 600. There were 600 people working at Gemini studio, so that's why they have been called as Gemini family. उन सब ने बार बार ये प्ले देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. जो मैसेज थे इस प्ले के, वो बहुत ही सिंपल एंड होमिलीज मीन्स ऑर्डिनरी बोरिंग एडवाइस, जो एक बहुत ही सिंपल सलाह जो होती है उसी तरह से था। लेकिन जो उसके सेट्स और कॉस्ट्यूम थे वो फर्स्ट रेट के थे, वो बहुत अच्छे थे। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a sense of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. और उनके जो सेट्स कॉस्ट्यूम्स बहुत फेमस हुए, और इससे बहुत से लोग इम्प्रेस थे। तो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी, उसके बाद आने वाले कई सालों तक वो उसी तरह से सनराइज और सनसेट दिखाते थे जैसे कि जोथम वैली में दिखाया गया था। एक खाली स्टेज जिसमें वाइट बैकग्राउंड कर्टेन हो और एक ट्यून फ्लूट पर, बांसुरी पर बजाई गई थी। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to Indian communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. और ये कुछ साल बाद मुझे पता चला कि एमआरए जो था वो एक जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म था, उसका एक मूवमेंट था। दैट वाज अ काउंटर मूवमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक काउंटर मूवमेंट था। और मिस्टर वासन जैसे बड़े बड़े लोग उनके हाथों का एक तरह से पपेट बन गए थे, उनके हाथों का खिलौना बन गए थे। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. लेकिन वो कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता है कि वाकई में ये बात थी, और इन बड़े लोगों के जो चेंजेबल पहलू थे एक तरह से, वो वही थे या नहीं थे, वो चेंज हुए या नहीं हुए, वो एमआरए था या नहीं था, कम इंटरनेशनल कम्युनिज्म था या नहीं था। The staff of the Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. लेकिन ये हमें पता है कि जेमिनी स्टूडियोज का जो स्टाफ है उसको बड़ा मजा आया 200 लोगों को होस्ट करके, अलग अलग कलर के, ह्यूज मींस कलर, हर तरह के रंग, हर तरह के साइज के, और लगभग 20 नेशनैलिटीज यानी कि 20 कंट्रीज से वो लोग आए हुए थे। It was such a change from the usual connection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. और ये एक्चुअली बहुत चेंज भी था ये उनके लिए, मेकअप डिपार्टमेंट में, ऑफिस
के द्वारा, मतलब फिर से उन्हीं कलाकारों की भीड़ पर वो मोटी मोटी परतें जो उनको थिक लेयर्स लगानी होती थी मेकअप की, तो उनके लिए भी ये बहुत चेंज था, बिकॉज नाउ दे हैड डिफरेंट पीपल on whom they were supposed to use makeup. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. फिर ये तो चले गए, उसके कुछ महीनों बाद फिर से बिग बॉसेस की टेलीफोन लाइंस जो थी वो बजनी शुरू हो गई, और फिर जेमिनी स्टूडियो जो है तैयार हो गया एक और विजिटर को वेलकम करने के लिए. ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. सिर्फ इतना बताया गया कि वो इंग्लैंड से कोई पोएट है. द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. लेकिन इंग्लैंड से किसी भी पोएट्स के बारे में जो जेमिनी के स्टाफ ने सुना था वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में सुना था. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन. हाँ, जो थोड़े और पढ़े लिखे थे वो कीट्स, शेली, बायरन को जानते थे. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम ऑफ इलियट. और एक आध होगा जो कि बहुत फेंटली उसको कुछ ना कुछ इलियट के बारे में पता होगा. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? वो कौन सा पोएट है जो अब जेमिनी स्टूडियोज आ रहा है? He is not a poet, he is an editor. वो पोएट नहीं है, एडिटर है. That's why the boss is giving him a big reception. इसीलिए बॉस उसको बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं. वसन was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan. जो वसन थे, मतलब जो यहाँ के बॉस थे, वो भी एक तमिल वीकली मैगजीन आती होगी जिसके एडिटर थे. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. वो मद्रास के किसी ब्रिटिश मद्रास में किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन की बड़ी फेमस किसी मैगजीन के एडिटर नहीं थे. दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो. एंड और इस खासकर वो जो कि जेमिनी स्टूडियो में जानी जाती थी. Since the top men of the Hindu were talking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all that even the most well-informed dog among us knew. हाँ, जो the Hindu के जो top men थे, they were taking the initiative. और इसमें जो खबर थी वो ये थी कि ये जो बंदा आ रहा है, ही इज फ्रॉम सम डेली न्यूज़पेपर. लेकिन डेली न्यूज़पेपर जो फेमस न्यूज़पेपर थे इंग्लैंड के, द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, उसका नहीं, लेकिन हाँ किसी डेली न्यूज़पेपर का वो एडिटर है. दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंगस्ट अस न्यू. हम में से जो बहुत कुछ जानने वाले भी थे वो सिर्फ इतना ही जानते थे. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. अंत में 4 बजे वो आया. पोएट था, एडिटर था, जो भी था. He was a tall man, लंबा सा आदमी, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. जो शूटिंग स्टेज थी उस पे हाफ अ डजन, मतलब 6 जो है पेडेस्टल स्टैंड थे, उन सब से लड़ता हुआ द बॉस read out a long speech. Why? Because these pedestal stand they make a lot of noise. बहुत आवाज करते हैं, तो उन सब की आवाज से लड़ता हुआ जो बॉस था उसने एक बड़ी सी स्पीच दी. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. और ये उसकी स्पीच से साफ पता चल रहा था कि वो खुद भी बहुत कम जानता था उस इंसान के बारे में. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. स्पीच बहुत ही जनरल थी, लेकिन कहीं कहीं जो है वो कहीं कहीं ये वर्ड्स यूज किए गए थे जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी. ऑलराइट, तो अदरवाइज इट वाज क्लियर कि ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो मच अबाउट हिम. देन द पोएट स्पोक. फिर वो जो पोएट था उसकी बोलने की बारी थी. उसने बोला, he couldn't have addressed a more dazed and silent audience. वो इतनी ज्यादा dazed means surprised, dazzled और and silent audience को address नहीं कर सकता था. No one knew what he was talking about. किसी को पता ही नहीं था वो बोल क्या रहा है. And his accent defeated any attempt to understand what he was saying. और उसका जो accent था, because he was an Englishman, he was a Britisher, his accent was such that उसने सबको हरा दिया ये इस उस अटेम्प्ट को कि ये क्या बोल रहा है वो समझने में. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर. पूरा ये सब कुछ 1 घंटे तक चला. देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट. बैफलमेंट इज कंफ्यूजन.
व्हाट आर वी डूइंग, किस बात का कंफ्यूजन कि हम क्या कर रहे हैं। पूरा 1 घंटे तक उनका ये स्पीचेस और इसका प्रोग्राम चला, और उसके बाद सब जो है तितर बितर हो गए, डिस्पर्स हो गए, लेकिन सब इस टाइम पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि ये क्या है, कौन है, हम क्या करने वाले हैं। What is an English poet doing in a film studio which make Tamil films for the simplest sort of people? एक इंग्लिश पोएट यहाँ फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, खासकर वो स्टूडियो जो कि तमिल की फिल्में बनाता है, बहुत सिंपल लोगों के लिए। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. और खासकर ऐसे लोग जिनकी लाइव्स जो है उनको अफोर्ड नहीं करती थी कि वो बहुत ही दे वुड कल्टिवेट अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, कि वो इंग्लिश पोएट्री के लिए जो है अपना टेस्ट डेवलप कर सकें। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, और वो जो पोएट था वो भी बड़ा बैफल्ड, मतलब कंफ्यूज लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet, क्योंकि उसने भी वही सेम काइंड ऑफ इनकॉन्ग्रुटी फेस की होगी, वही सेम काइंड ऑफ कंफ्यूजन उसको भी रहा होगा। इनकॉन्ग्रुटी यू कैन से एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मीन्स बेकार होना कोई चीज, है ना, व्यर्थ होना जिसको बोलते हैं। तो वो भी अपनी जो उसने बात की वो सब बेकार हो गई एक तरह से, इट वॉज इनकॉन्ग्रुएंट टू ऑल दीज पीपल, तो वो उसने भी फील किया। एंड अबाउट हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, जो उसने अपने उसमें थ्रिल्स मतलब एक्साइटमेंट, एंड ट्रेवल्स मींस टॉयल, लेबर, मेहनत जो होती है इंग्लिश पोएट्स की, उसके बारे में जो उसने अपनी स्पीच में बोला था वो बेकार गया, बिकॉज नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड हिम। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, तो उसका वहां पर आना एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था, किसी को नहीं पता था कि वो क्यों आया था, क्या उसने कहा। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. जो बड़े बड़े प्रोज राइटर्स हुए हैं, प्रोज राइटर्स आप समझते हैं जो गद्य लिखते हैं, मींस स्टोरी राइटर्स, ऐसे राइटर्स, वन आर पोएट्री राइटर्स, अदर्स आर प्रोज राइटर्स। जो दुनिया के बड़े बड़े प्रोज राइटर्स हुए हैं वो भले ही इस बात को ना माने, बट माई कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन मीन्स बिलीफ, माई बिलीफ ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, लेकिन मेरा ये विश्वास हर दिन बढ़ता रहता है दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट and cannot be the true pursuit of a genius. Pursuit means quest of a genius, कि इसमें कोई बहुत बड़े जीनियस के करने के लायक काम नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि प्रोज राइटिंग के लिए आपको बहुत जीनियस होना पड़ेगा। इट इज फॉर द पेशेंट, ये धैर्यवान लोगों के लिए। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स हु बिलीव इन कंटिन्यूटी, ऑलराइट। persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. persevering means constant. ड्रज है, ड्रज इज द टॉयल, मेहनत जिसको बोलते हैं, मेहनती लोगों के लिए है। विद अ हार्ट, जिनका हार्ट इतना श्रंकन है दैट नोबडी कैन ब्रेक इट, उनका हार्ट इतना ऑलरेडी सिकुड़ा हुआ है कि उस हार्ट को कोई तोड़ ही नहीं सकता। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, अगर रिजेक्शन स्लिप मतलब कि अगर उनका जो वर्क है वो पब्लिश होने के लिए रिजेक्ट भी हो जाए तो उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू सी, नाउ द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट प्रोज राइटिंग, वो प्रोज राइटिंग के लिए बात कर रहा है, और वो कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़े जीनियस का काम नहीं है। प्रोज राइटिंग के लिए आपको पेशेंट होना चाहिए, यू मस्ट हैव गुड पेशेंस, परसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूटी, एंड परसिवियरिंग ड्रज, परसिवियरिंग ड्रज, कांस्टेंट टॉयल, विद अ हार्ट सो श्रंकन, जिनका हार्ट खुद इतना सिकड़ा हुआ है कि उसको कोई ब्रेक ही ना कर सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, रिजेक्शन स्लिप्स उनसे को वो जानते ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. वो रेडी रहना चाहिए, मतलब जो प्रोज राइटर्स हैं वो अपने जो प्रोज उन्होंने लिखा है उसकी कॉपी जो है तैयार करते रहते हैं, एक एक एडिटर से रिजेक्ट होकर आ गई तो दूसरे को भेजने के लिए, और जिसमें कि वो पोस्टेज स्टैम्प भी लगाते हैं रिटर्न के लिए, रिटर्न फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑलराइट, मतलब दैट वाज आल्सो अ वे
कि अगर उसमें लिखा जाता था कि इफ यू आर नॉट एबल टू, मींस इफ इट इज नॉट accepted by the person whom you are sending it, then it should return to this address, है ना, तो वो उसके साथ उसको भेजेंगे. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. और ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट यूजलेस कॉर्नर में जो कि अनइम्पोर्टेंट पेज पर था, उसमें एक छोटी सी अनाउंसमेंट की गई कि एक शॉर्ट स्टोरी का कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन टाइप ऑफ, है ना, जो एक ब्रिटिश पीरियोडिकल, ब्रिटिश मैगजीन ने निकाला है. द नेम वाज द एनकाउंटर. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेरिटी. हालांकि जो ये द एनकाउंटर था, ये जो मैगजीन थी, दैट वाज नॉट अ नोन कमोडिटी, इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था. खासकर जो जेमिनी लिटरेटी थी, मतलब वहां के जो पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं जानते थे. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. मैं लेकिन इस पीरियोडिकल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहता था और जानना चाहता था इससे पहले कि मैं वहां पर कुछ भेजूं, है ना, इंग्लैंड में. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों में जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उसका जो एंट्रेंस होता था उस पर ऐसे ऐसे साइन बोर्ड्स, लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स जिसको बोलते हैं, मतलब इम्प्रेसिव, विंडेड मींस इम्प्रेसिव साइन बोर्ड्स लगाए जाते थे, नोटिस लगाए जाते थे, जिससे कि आपको वहां जाकर ये फील होगा एज इफ यू आर स्नीकिंग. स्नीकिंग मींस सीक्रेटली मूविंग टू अ फॉरबिडन एरिया, टू अ एरिया वेयर यू आर नॉट अलाउड टू गो. And those were the copies of and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और एक्चुअली द इनकाउंटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया, जहां पर उसने देखा कि बहुत सारी द एनकाउंटर की कॉपीज वहां पर पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड, किसी ने छुआ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा तो मेरे तो एक जो श्रंकन हार्ट था उसमें जैसे घंटी बजने लगी. इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज. और वो एडिटर और कोई नहीं बल्कि वो पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज आया था. I felt like I had found a long lost brother. मुझे लगा शायद मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया है. And I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. और मैं गाता हुआ, मतलब मैं खुश हो, because he was very happy. तो कि मैं जो है जब एनवेलप को सील कर रहा था तो मैं गाना गा रहा था और मैंने उसका एड्रेस लिखा. I felt that he too would be singing the same song at the same time. वो गाते हुए मुझे लग रहा था शायद वो भी यही गाना गा रहा होगा. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. क्योंकि अक्सर इंडियन मूवीज में ऐसा होता है कि बिछड़े हुए भाई मिलते हैं जब वो एक ही तरह का गाना गा रहे होते हैं, फर्स्ट रील में और फाइनल रील में. स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था. और स्टीफन स्पेंडर. And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time, but not much money, और जब मैं काफी साल बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर हो गया, जब मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माय अटेंशन. तो कोई भी चीज जिसका रेट घट गया हो, कम रेट की हो, वो हमेशा मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करती थी. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. तो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर उसने देखा कि नई किताबों का पूरा पाइल था, ढेर था, और सिर्फ 50 पैसे की एक थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन. वो उसी बुक की कॉपीज थी. Special low-priced student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. तो मैंने 50th एनिवर्सरी पे उन्होंने स्टूडेंट एडिशन निकाला था रशियन रिवॉल्यूशन पर, तो उसने जो है वो 50 पैसे पे किए और वो बुक ले ली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys
into communism and their disillusioned return. जो 6 eminent लोग थे, उन्होंने 6 essays लिखे थे, और राइट, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया था कम्युनिज्म से, और किस तरह से वो डिसइल्यूजन होकर वापस हुए वहां से. So who those 6 people were? These are the 6 people, and their introduction has also been given in your books, right? Henry Gitt, Richard Wright, Ignazio Silon, Arthur Koestler, Louis Fisher, and Stephen Spender. Stephen Spender? Suddenly, the book assumed tremendous significance. जैसे ही स्टीफन स्पेंडर का नाम उसने पढ़ा, तो उसको वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini's studio, वही जो आया था. In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. Illumination means brightness. अचानक से मुझे लगा मेरे दिमाग का जो एक कोई अंधेरा कमरा है, वो अचानक से उसमें प्रकाश भर गया है. The reaction of the Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. क्योंकि जो स्टीफन स्पेंडर का रिएक्शन था जेमिनी स्टूडियोज पे, अब वो कोई मिस्ट्री नहीं था. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with this god that failed. क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था, उसके पास स्पेंडर की पोएट्री से कोई लेना देना ना हो या ना हो, लेकिन हाँ, उस गॉड से लेना देना जरूर था, जो अब फेल हो गया था. Alright, so that was all about this story, The Poets and Pancakes.